Hi guys, all set and another day of excitement with Forever. Forever में और एक दिन धमाल का होने वाला है आज. और last time we had Dr. Medha and she was superb that इतना डिमांड आया था हमको कि उनको वापस बुलाओ. तो बहुत मुश्किल से मिलती है. So with great difficulties we had to convince her. उसको वापस बुलाना पड़ा and to invite her specially today to do skincare. Sorry थोड़ा आज डिले हुआ था because we had some other commitment also, so sorry for that. तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आज जो भी ज्वाइन किया आपकी वीडियोस बंद करो क्योंकि we want doctor to concentrate on a training and because it's work from home we don't want you to sit home. I know you are sitting home comfortably, but some of you are in a very uh, super cool positions which we don't want doctor to be distracted. So I would request all your photos, all your videos, please put it off. If you want to put it on, please let us know. We'll make you one of the guest speakers, and so we'll get you as one of the speakers. Okay. So anyway, thanks a lot, everybody. It's been amazing that you have joined. It's been amazing, and today's group is fantastic. Let me tell you who are the people behind this group. It's of course Forever. So we have Rajiv, we have Santosh, and we have Ashutosh. So I don't know if Ashutosh is there. Ashutosh, are you there? If you're there, I would like to invite you to at least speak for 2 minutes on your कार प्लान लेवल 3. सो एक कार प्लान लेवल 3 एक इंसेंटिव है हमारा कंपनी में जो रफली नियरली 42 to 45,000 rupees पर मंथ एक्स्ट्रा देता है फॉर अ कार. सो इफ आशुतोष इफ यू आर देयर जस्ट let me know so that I can invite you also, or maybe we can get him in the end of the seminar. Doc, it will be a good idea, yes. right? Whatever, whichever way you feel. If you see the newsletter, he's on car plan level 3. Yes, I have seen. So maybe when he joins, I'll get him in. But so today we'll not waste time, guys. आज का बहुत अच्छा दिन है और फॉरएवर का एक चीज मैं बता रहा आपको कि बिजनेस डबल हो रहा है. ये कोरोना में जो सबकी हालत खराब है मैं ये नहीं बोलूंगा. इनफैक्ट आई वाज टॉकिंग टू another guy today where his father was admitted and he got a bill of he's a teacher. Being a teacher, he had hardly saved 15 lakh rupees and डॉक्टर लोग ने पूरा 15 लाख कोरोना में समझ गया. अब तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं इसमें, but our Dr. Mehra is specialist, has lot of knowledge in skincare. So I will not want to waste time. And if my skin is shining, you know why? Yes, definitely. Your skin is shining, extra shining today. It's because of Infinite, because I started using Infinite for the last 1 month and it has done wonders. But I don't want to talk about it because we have amazing Doctor, results. The screen is all yours. Thank you for coming, and the full team loves you. Guys, whoever's invited you, whoever sponsored you is your service center. So please get in touch with the person who's invited you for the seminar, because they're your we can call you their service manager. They're your service manager, so they'll give you the best support. So guys, I don't want to take time. Mehra, it's all yours. Yes. Good evening, friends. Thanks again for coming. Thank you. Thank you. Thank you, Simon sir. Hello, everybody. Hello, Forever. कैसे हैं सब लोग आप? Hope you all are good. चलो, let's start. Today's topic is skincare. Before we start with skincare, let's see or let's learn the skin types. Direct to the subject. I don't have any slides, so आप लोगों को notes बनाने हैं तो बना सकते हो. Be attentive. Let's see different classifications of skin types. Everybody must be aware, और बहुत सारे लोग इसी के बारे में बोलते हैं. There are 3 types of skin types: dry skin, oily skin, and combination skin. Dry skin is dry, खिंची सी skin होती है. Oily skin is all the time you see oil appearing on the skin, and combination skin is normally the T-zone, nose and forehead. This is called T-zone is oily, and other parts may be dry, or season to season it might change. So it's called combination skin. So this classification normally people are aware, but are you aware? And according to another classification of skin types, there is one called young or tender skin, and the other one is mature skin.
If somebody's age is 50, not necessarily his skin is of 50. His skin can be of 25 years old person. And somebody who is in the age group of 25 to 30 can have skin of 50 years old, depending upon what kind of lifestyle you are leading and again what kind of nutrition you are having. So second type of classification is young skin and mature skin. Now third type of classification. One is happy skin and one is angry skin. Which one is yours? Please check yourself. Happy skin meaning skin looks glowing, healthy. Color of skin doesn't matter, but it should be flawless. So that's a happy skin. Angry skin meaning there are some eruptions on the skin, some pimple prone skin, rashes, or you feel like scratching all the time. And that is an angry skin because you are not giving proper nutrition, you are not taking care. So because of lack of nourishment, skin is angry. So that kind of skin is angry skin. So third classification, happy skin, angry skin. Next classification, deficient skin or patchy skin or pimple prone skin or allergic skin or flaky skin. In case of psoriasis and eczema patients, they have flaky skin. If you rub the skin, flakes will come. It's absolutely dry. Okay. Then there is itchy skin, the acidic pH wali skin. Normally, it should be not acidic, not alkaline. It should be neutral. So some people having wrong food habits and wrong sleeping pattern, and the skin is not hydrated, their blood will be acidic, and that's why they will have acidic pH and it will show off on the skin. So this is all about classification of skin types. Now let's see factors which are responsible for skin types. ऐसे कौन से कारण है जो अलग अलग स्किन टाइप्स बनाते हैं? पहला फैक्टर है ऑफ कोर्स जेनेटिक्स और एथनिक ग्रुप. आप किस कम्युनिटी में बिलोंग करते हो उसके हिसाब से आपका ईटिंग पैटर्न होता है. दैट्स कॉल्ड एथनिक ग्रुप. और जेनेटिक्स, किसी के घर में सुंदर लोग हैं या फ्लॉलेस स्किन की हेरिडिटी है, सो दे विल बी नेचुरली having glowing skin and they will be naturally looking beautiful irrespective of the color of the skin. So that's all about genetics and ethnic group. Second factor which is responsible for skin types is diet and lifestyle or nutrition. It plays a vital role. बहुत important role play करता है diet, lifestyle and nutrition. Third factor which is responsible for skin types is mental state or your stress level or your digestion and absorption. उसके ऊपर भी स्किन किस टाइप की होगी वो निर्भर करता है. क्या है? मेंटल स्ट्रेस और मेंटल स्टेट. आपकी दिमागी हालत कैसी है? आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो स्किन इज वेरी सेंसिटिव. इट शोज ऑफ ऑन द स्किन. ओके. फोर्थ फैक्टर which is responsible for skin type is hydration or your water intake. Let's see the fifth factor which is responsible for your skin type, that is exposure to toxins from air and food or water. हम जब घर से बाहर निकलते हैं या इवन एसी के अंदर बैठते हैं बहुत सारे लोग, तो किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स हो सकते हैं. या बाहर घूम रहे, पोल्यूशन में घूम रहे तो भी टॉक्सिक हो सकते हैं. कोई इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं तो वहां पर भी टॉक्सिन्स की मात्रा ज्यादा हो सकती है. या फिर पानी या फूड से भी टॉक्सिन्स जा सकते हैं. तो वो एक्सेस एक्सपोजर टू एनी टाइप ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम एनी सोर्स, योर स्किन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप, कंटिन्यूअस एक्सपोजर से. सिक्स्थ फैक्टर इज एलर्जी टू फूड और एलर्जी टू फैब्रिक और एलर्जी टू सराउंडिंग. जो कपड़े हम पहनते हैं, कभी पॉलिएस्टर के या नायलॉन के या सिल्क के या कॉटन के, कभी सम पीपल आर एलर्जिक टू एनिमल फाइबर्स, जैसे वुल है. वुली ब्लैंकेट पहनने से किसी को इचिंग होता है, एलर्जीज होती है, रैशेस आते हैं. किसी को सिंथेटिक कपड़े पहनने से कुछ हो जाता है स्किन पे, सो वो एलर्जिक स्किन है. और दूसरा एक फैक्टर है पर्सनल हाइजीन. बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनल हाइजीन, जो आपका स्किन टाइप डिसाइड करता है. आप कभी कभी बॉर्न
अच्छी स्किन वाले हो सकते हैं, पर बिकॉज आपकी हैबिट्स या आपकी पर्सनल हाइजीन की हैबिट्स ऐसी नहीं है कि आप अच्छे से अपने आप को मेंटेन कर पा रहे हो स्किन को, तो वो फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर 8वां फैक्टर है स्लीपिंग क्वालिटी। सोते तो हम सभी हैं, वी ऑल स्लीप, पर क्या हमारी क्वालिटी स्लीप है, गहरी नींद है, इज इट अ साउंड स्लीप? कुछ लोग अच्छे से सो नहीं पाते बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली, देयर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन गेट्स अफेक्टेड। जो न्यूट्रिएंट्स हम खाते हैं दे आर नॉट एबल टू प्रॉपरली एब्जॉर्ब इन द स्किन, इन द सिस्टम, इसलिए भी स्किन हेल्दी नहीं दिखती है। सो ये 8 फैक्टर्स हमने देख लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्किन टाइप कौन सा हो सकता है आपका। इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्किन केयर, क्यों जरूरत है स्किन केयर की और कैसे कैसे स्किन केयर हो सकती है। जब हम पैदा होते हैं तो घर में बच्चों को ऑयल का मसाज होता है, ट्रेडिशनल घरों में सभी जगहों में इंडिया में तो होता ही होता है। कोकोनट ऑयल या मस्टर्ड ऑयल से मसाज करते थे पहले जमाने के लोग, या फिर उपटन लगाते थे, बेसन, हल्दी, दूध या क्रीम या मलाई लगा के। इस तरह के घरेलू स्किन केयर तो होती ही थी। पर आज मैं जिस स्किन केयर की बात कर रही हूँ वो है फॉरएवर का स्किन केयर सिस्टम। फॉरएवर के पास भी एक ऐसा मजबूत फॉर्मूला है जो 5000 सालों से चलता आ रहा है। उसका बेस है हमारा एलोवेरा। 5000 सालों से ह्यूमन रेसेस हैव बीन यूजिंग एलोवेरा फॉर स्किन केयर। क्लियोपेट्रा वाज यूजिंग एलोवेरा टू प्रिजर्व हर ब्यूटी। वो बहुत सुंदर थी, आप लोग सब जानते ही होंगे। तो अभी एलोवेरा के साथ फॉरएवर में क्या क्या है स्किन केयर के लिए, चलिए देखते हैं। एक तो है डेली क्लेंजिंग। स्किन के लिए, स्किन केयर के लिए सबसे पहला पैटर्न आता है डेली क्लीनिंग। डेली स्किन के क्लीनिंग के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? सोप्स, तो हमारे पास है हैंड सोप स्किन केयर के लिए, हमारे पास है एवोकाडो सोप, फिर हमारे पास सैनिटाइजर्स भी है आज की तारीख में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसमें है एलोवेरा और हनी, इसमें है एलोवेरा, हनी एंड प्रोपोलिस। एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीपायरेटिक, एंटीप्यूरिटिक, सारे एंथ्रेक्विनोन कॉम्प्लेक्स एलोवेरा के अंदर है, टॉप टू बॉटम, अंदर से बाहर। तो डेली क्लीनिंग के लिए हमारे पास सोप्स है। फिर हमारे पास एलो क्लेंजर्स भी है 3 प्रकार के, एक तो इन्फिनिट में है, एक सोनिया में भी है और एक नॉर्मल है क्लेंजर। इसके अलावा आप एलो एक्टिवेटर का भी क्लेंजर का की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये हो गया डेली क्लेंजिंग के लिए। डेली क्लेंजिंग हम कर सकते हैं फॉरएवर के एलोवेरा प्रोडक्ट्स यूज करके। उसके बाद आता है वीकली क्लीनिंग। वीकली क्लीनिंग हम घर का करते हैं, वैसे वीकली क्लीनिंग स्किन का भी करना जरूरी है। उसके अंदर क्या क्या आता है? आर्थरी फैक्टर एक हमारा प्रोडक्ट है जो स्किन पीलिंग करता है। इट्स अ फ्रूट बेस्ड एसिड्स है उसके अंदर, जो स्किन का ऊपर का डेड स्किन निकाल देता है। अब जब ऊपर का डेड स्किन निकालते हैं, आर्थरी फैक्टर को अप्लाई करना है सिर्फ और छोड़ देना है, रात भर भी रख सकते हैं। उसके बाद में जब आपके स्किन के ऊपर का डेड स्किन निकल जाता है तो अंदर की जो टेंडर स्किन है, यंग स्किन है, दैट इज वेरी सेंसिटिव, इसलिए आपको सनस्क्रीन यूज करना मैंडेटरी है, बहुत इसेंशियल है। आर्थरी फैक्टर यूज करने के बाद आप सनस्क्रीन यूज करो, और स्किन और भी ड्राई हो रही है तो हमारे पास एक बेसिक मॉइस्चराइजिंग लोशन भी है। दिस हैज कोलेजन आल्सो इन इट, बेस्ट फॉर स्किन। मैं तो डेली यूज करती हूँ, ये सब चीजें मेरे घर में यूज्ड है। मैं क्यों स्लाइड्स में दिखा रही हूँ, इसका कारण यही है। कुछ लोग बोलते हैं इतनी प्रीमियम रेंज और आपकी वर्ल्ड की बेस्ट एलोवेरा कंपनी, और ये प्रोडक्ट्स यूएस से यहाँ तक आते हैं और क्या यूज भी करते होंगे लोग, तो स्लाइड देख के विश्वास नहीं आता ना लोगों को, इसलिए मैं एक्चुअल प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ। ओके, तो ये हो गया वीकली क्लीनिंग के बारे में। क्योंकि वीकली स्किन केयर क्यों जरूरी है कि हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, पोल्यूशन में जाते हैं, और स्किन का एक बार सुबह नहा लिया, बाहर निकल गए, घर पे 8-10 घंटे बाद आते हैं, तो रोज के रोज शायद इतना केयर ना कर पाए हम। तो इसलिए वीक में एक बार आर्थरी फैक्टर लगाइए, फिर रोज के रोज सनस्क्रीन अप्लाई करना है और रोज के रोज मॉइस्चराइजर भी अप्लाई करना है। अभी उसके बाद आता है ऑकेजनल स्किन केयर। ऑकेजनल स्किन केयर में क्या आता है कि ऑकेजनली हम
मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूवल के लिए हमें स्किन केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेकअप तो केमिकल होता है, मेकअप में जो भी चीजें यूज होती है तो वो अच्छे से क्लीन नहीं किया तो हमारे स्किन के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो उसको स्किन इज नॉट एबल टू ब्रीथ, इसलिए हमें पोर्स को खोल देना भी जरूरी है, फिर उसको बंद भी करना जरूरी है थोड़ा खुला रख के, तो हमारे पास टोनर भी है। तो ओकेजनल स्किन केयर में आता है मेकअप रिमूवल, आई मेकअप रिमूवल, फेस मेकअप रिमूवर। उसके बाद हम अपने हाथों पे यदि नेल आर्ट कर रहे हैं या नेल पॉलिश लगा रहे हैं तो नेल पॉलिश रिमूव करने के बाद या नेल आर्ट या नेल एक्सटेंशंस रिमूव करने के बाद भी क्यूटिकल्स या ये वाला पोर्शन नेल्स का ड्राई हो जाता है स्किन का, तो उसकी भी केयर जरूरी है। तो ये सब आता है ओकेजनल स्किन केयर में। स्किन केयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फेस, स्किन केयर में टोज, पैर के भी, हाथ के भी, बॉडी भी है, फेस है, नेक है, यहाँ तक कि स्किन और पूरे शरीर के लिए भी हमारे पास बॉडी लोशन है, एलो लोशन, वो भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं वेरी स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि मैरिज या पार्टीज। अब ये मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओकेजन होता है इंसान के जिंदगी का, तो उसके लिए हम क्या स्किन केयर रेजिम सजेस्ट करते हैं, तो ये 90 to 120 डेज का पैकेज होता है वेरी स्पेशल ओकेजन्स, मैरिज जैसे ओकेजन्स के लिए। उसमें आपको 28 ये क्यों, कारण इसका क्या है कि आज मैरिज है तो 28 दिन में हमारी स्किन बनती है, एक साइकिल हमारे स्किन को पास करना है, तो उसके लिए इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखते, क्योंकि मैरिज मीन्स प्री ब्राइडल मेकअप होता है, प्री ब्राइडल शूट भी आजकल करते हैं लोग, फिर एक्चुअल मैरिज का ओकेजन, उसके बाद हनीमून पे जाके वापस आते हैं, तब तक वो रेस्टोर होना चाहिए, इसलिए उसको बिफोर मैरिज 90 to 120 डेज हम सजेस्ट करते हैं कि एक पूरा स्किन केयर रेजिम ले लीजिए। उसके अंदर हम बॉडी पॉलिश भी सजेस्ट करते हैं, मैं आगे बताने वाली हूँ सब कुछ कि क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, हम फॉरएवर के कौन कौन से प्रोडक्ट्स बॉडी पॉलिशिंग के लिए यूज कर सकते हैं और स्किन केयर के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आप एकदम अपना स्पेशल ओकेजन स्पेशल बना दो। तो ये हुआ आपका डेली स्किन केयर, वीकली स्किन केयर, ओकेजनल स्किन केयर और वेरी स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्किन केयर। अभी ये स्किन केयर की नीड क्या है, क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि यू शुड लुक गुड, यू शुड फील गुड, तो हम अच्छा फील करें, यू शुड वेयर कॉन्फिडेंस एंड यू शुड वेयर स्माइल ऑन फेस, इसलिए हमें स्किन, यदि हम स्किन की केयर लेते हैं तो यू फील गुड, यू फील मोर कॉन्फिडेंट और यू गेट मोर सोशल एक्सेप्टेंस। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो कि यदि हम अच्छे दिखते हैं, प्रेजेंटेबल दिखते हैं, यदि हमारी स्किन हेल्दी होती है, हाइजीनिक लगती है, तो कोई भी हमें ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट करता है हमारे प्रोफेशन में, हमारे घर में या जहां कहीं भी, जिस कहीं जगह हम जा रहे हैं वहां पे, इसलिए स्किन केयर की नीड है। अब एक स्पेशल नीड आ गई है, वी आर इन द मिडल ऑफ द पेंडेमिक, तो पेंडेमिक स्पेशल या कोरोना स्पेशल स्किन केयर। अभी ये सुनकर शायद आपको हंसी आएगी या मजाक भी लगेगा, पर मजाक की बात है ही नहीं, क्योंकि मास्क पहनना सबके लिए मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है, नहीं तो 200 रुपए का चालान है, दिल्ली मेट्रो में 200 रुपए का चालान है, रोड पे निकलो तो 500 रुपीज का चालान है, आई थिंक मुंबई में भी है और सब जगह ही है चालान। तो हमें ये मास्क जो आज तक हमने कभी पहना नहीं था वो ऐसे पहन के रखना है। तो होता क्या है कि ये मास्क हम, यदि हम ऑफिस गोवर्स है तो हम घर से ऑफिस पहुंचते हैं तो 2 घंटे कंटिन्यूअस लगाते हैं, फिर ऑफिस में भी, पब्लिक प्लेसेस में, सब जगह मास्क पहन के रखना मैंडेटरी है। तो ये हम पहने हुए जब मास्क होते हैं तो ऑल ऑफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड कि व्हेन यू आर वेयरिंग अ मास्क एंड इनसाइड मास्क, व्हेन यू ओपन योर माउथ टू स्पीक और व्हेन यू ओपन योर माउथ टू यॉन, यॉर्निंग करने के लिए या बात करने के लिए मास्क के अंदर जब आप मुंह खोलते हो तो अपने खुद के मुंह की आपको बदबू आती है। ये आप लोगों ने सबने एक्सपीरियंस किया होगा, पर कोई पब्लिक में इसके बारे में चर्चा नहीं करता। आई थिंक एवरीबॉडी विल एग्री विथ मी, राइट? अब इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया। तो हमारे पास हमारी फेशियल स्किन के लिए भी एक प्रोडक्ट है, ये है फॉरएवर का एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल फेस मास्क, जो 3 लेयर का है और इसका अप्रूवल ऐसे वैसे कंपनी किसी ने दिया नहीं है, तो
ये दिया है सीट्रा नाम की एक टेस्टिंग लैब है इंडिया में 4 जोन्स में डिवाइड किया है टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब्स को। तो ये सीट्रा द्वारा प्रमाणित है। सीट्रा मीन साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित ये मास्क है। इसके अलावा इसको कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी है और ये 10 टाइम्स धो के यूज कर सकते हो 3 लेयर से। इसके अंदर आप आपका N95 फिल्टर भी फिट कर सकते हो और ये एडजस्टेबल है। तो सबसे पहले स्किन केयर के लिए ये भी जरूरी है क्योंकि आपकी स्किन को बचाना है। दूसरा एक प्रोडक्ट है मास्क, जब पहनते हो ना तो छोटी सी डिब्बी में फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल भी कैरी करो क्योंकि आपने कहीं बाहर गए ऑफिस प्लेस में खाना खाया तो खाने के बाद मुंह धो के थोड़ा सा टूथ जेल अप्लाई करके रखो। तो क्योंकि स्किन केयर में ओरल कैविटी के अंदर भी तो स्किन है, तो ओरल कैविटी के अंदर के स्किन की भी केयर लेनी जरूरी है क्योंकि बैक्टीरिया तो उधर भी है। बैक्टीरिया कहीं भी आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, ना वायरस छोड़ रहा है। तो ये आप अपने पर्स में या अपने बैग में, ऑफिस बैग में हमेशा रखिए। कहीं भी खाना खाया, मुंह धोया, थोड़ा सा अप्लाई करके और रखिए ओरल कैविटी में। उसके बाद यू वेयर योर मास्क एंड सी द रिजल्ट्स इन 3 days। आप सब लोग मुझे कहोगे कि यस मैम वी नेवर रियलाइज्ड इट, यू आर वेरी मच राइट कि ये क्यों जरूरी है। अच्छा, दूसरी एक बात कोरोना स्पेशल स्किन केयर में क्या आती है कि जरूरी नहीं कि सबके पास ये वाला मास्क है, होना जरूरी है, पर ये वाला मास्क नहीं है तो नॉर्मल हम 10 रुपए वाले 20 रुपए वाले मास्क भी लोग पहन के आजकल घूम रहे हैं। और क्या होता है, जो 10 रुपए और 20 रुपए वाला जो मास्क होता है रोड साइड में बिकने वाला, उसको आप जब पहली बार धोते हो तो कलर ब्लीड्स। इतने घटिया किस्म के टेक्सटाइल के कलर्स उसमें यूज होते हैं कि ब्लैक कलर का अंदर से लाइनिंग है तो ब्लैक वाटर निकलता है। इमेजिन यदि आप मुंबई जैसे जगह में रह रहे हो, इट्स रेनिंग ऑल्सो और पसीना भी आ रहा है, यू आर स्वेटिंग ऑल्सो, तो अंदर वो केमिकल्स जो है कपड़े पे लगा हुआ है वो पूरा इस एरिया में है। और ये इलास्टिक भी कभी कभी घटिया क्वालिटी का होता है। तो योर हाफ ऑफ द फेस इज गेटिंग अफेक्टेड मिनिमम 10 to 12 hours इन अ डे इन 24 hours। यदि आप कंटिन्यूस घर के बाहर रहने का आपका प्रोफेशन है, आप दुकानदार हो, आप रेस्टोरेंट ओनर हो, तो आपको कंटिन्यूस ही पहन के रखना है मास्क। तो ये जो प्रैक्टिसेस हमने कभी भी अपनाई नहीं थी आज तक की जिंदगी में, ये हमारे लिए न्यू नॉर्मल बन के आया हुआ है। तो हमें भी अपना तौर तरीका जिंदगी जीने का बदलना पड़ेगा। वी नीड टू चेंज आवरसेल्व्स विद द चेंज्ड न्यू नॉर्मल। तो अभी क्या करना पड़ेगा, ये तो लगाना मैंडेटरी है। बैक्टीरिया है, वायरसेस है और पूरी स्किन अफेक्ट हो रही है, हमारे लिप्स अफेक्ट हो रहे हैं, हमारा नोज अफेक्ट हो रहा है, यहाँ की स्किन अफेक्ट हो रही है कंटिन्यूअसली, वो लोगों के भी टच में हम आ रहे हैं। तो इसके लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। हमारे सारे फॉरएवर के स्किन केयर प्रोडक्ट्स या हमारे सारे फॉरएवर के एलोवेरा बेस्ड प्रोडक्ट्स वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब कि बहुउपयोगी, कि एक उसका एंड यूज है पर वो 10 या 20 या 200 तरीकों से यूज कर सकते हो। इसको लिप्स पे लगाओ मास्क लगाने के पहले। अब लिप्स ये हमारे स्किन का सेकेंड लेयर है, डर्मिस लेयर है डायरेक्टली, इसलिए वो ज्यादा डेलिकेट है। तो मास्क लगाने के पहले इसको लिप्स में अप्लाई करना है। उसके बाद आपको पूरे स्किन में मॉइस्चराइजर और थोड़ा सनस्क्रीन मिक्स करके लगाना है। 10 मिनट का टाइम जाने दो। उसके बाद थोड़ा सा डैप कर लो, यदि आप बॉम्बे जैसे पसीने वाले जगह में रह रहे हो तो। देन थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेके पाउडर पफ में लेके उसको लगाओ। उसके बाद 5-10 मिनट जाने दो। देन यू वेयर योर मास्क। उसके बाद आप चलो, दिन भर आपकी स्किन अंदर की और जो एक्सपोज्ड है विदाउट मास्क वाली दोनों अच्छी रहेगी। आप ये हफ्ते भर में या विद इन 10 days यू कैन नोटिस द चेंजेस जो मैं अभी बता रही हूँ। आपने अभी तक इतना ध्यान से या इतने गौर से इस बात को कभी समझा ही नहीं होगा, क्योंकि सडनली मास्क पहनने वाला सिस्टम आया है हमारे जिंदगी में, आया है। और 6 महीने 2-3 महीने तो हम पहले लॉकडाउन में थे, अब जब अनलॉक हो गया तो बाहर तो निकल गए, पर मास्क तो है, पर ये सब जरूरी है। तो ये कोरोना स्पेशल या पेंडेमिक स्पेशल स्किन केयर हो गया, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया हमारे पास तो ये है, तो हाथों की त्वचा, बाजार के सैनिटाइजर्स और हमारे सैनिटाइजर। अच्छा, आज का सेशन है स्किन केयर का।
अब फॉरएवर के क्लासिफिकेशन के अनुसार ये प्रोडक्ट पर्सनल केयर के होते हैं, बट देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड स्किन केयर प्रोडक्ट्स. All personal care products are not skin care products, but all skin care products are definitely personal care products. इसलिए मैंने स्किन केयर के सेशन में कुछ पर्सनल केयर के भी प्रोडक्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं, बिकॉज दैट इज अ नीड ऑफ द आवर. ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है पेंडेमिक स्पेशल और कोरोना स्पेशल स्किन केयर. ठीक है, इसके अलावा टाइम टू टाइम हाथ धोने के लिए हमारे पास हैंड सोप तो है ही. अब चलते हैं हमारे फॉरएवर के पास क्या क्या रेंज अवेलेबल है स्किन केयर की एक्सक्लूसिव. एक तो है सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम. उसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं. एक तो रिफ्रेशिंग जेल क्लेंजर है, वो जो ये हमारा जो सोनिया डेली स्किन केयर का रेजिम है वो पूरा बोटेनिकल्स और एलो से बना हुआ है. बोटेनिकल्स मींस जो वनस्पतियों के जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स है उसके, और सारे इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हमारे सारे प्रोडक्ट्स को अवेलेबल है. हमारा प्रेजेंस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का प्रेजेंस 160 प्लस कंट्रीज में 42 इयर्स से है. और एलोवेरा का ये महत्व है कि एलोवेरा वर्क्स ऑन ह्यूमन बॉडी इन 3 स्टेजेस, क्लेंजिंग, फिर थेरेपेटिक यूज है और नरिशमेंट, तीनों चीजें. तो अंदर से यूज करो चाहे बाहर से यूज करो. कुछ लोग होते हैं उनको कितना भी बोलो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए पियो, नहीं पीते. उन्होंने शायद कसम खाई हो कि नहीं पीना. तो फिर स्किन केयर है हमारे पास, तो इनको स्किन को खिलाओ कैसे? एलोवेरा हैज पेनिट्रेटिंग पावर. Aloe has lignin and saponin in it. Lignin penetrates deep down till the cellular level and it assists the absorption of whatever you eat. और saponin ये soap-like substance है, वो cleansing and detoxification के लिए जरूरी है. तो यदि आप पीते हो तो अंदर से आपका पोषण हो रहा है, नरिशमेंट हो रहा है, इम्यूनिटी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन भी हो रहा है. अब जब बाहर से खिलाते हो स्किन को तो भी खिलाना शब्द यूज कर रही हूँ. क्यों? बिकॉज एलोवेरा हैज पेनिट्रेशन पावर. जैसे ही ये थोड़ा सा आप लेके स्किन में लगाते हो, इट डिसअपियर्स, इमीडिएटली डिसअपियर्स, और सूदिंग और सॉफ्टनेस आपको फील होता है. मैं तो अपने स्किन को इतना पैम्पर करती रहती हूँ एंड आई रियली लव फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स स्किन केयर. ये है हमारी एलोवेरा जेली, बहुत ही वर्सेटाइल है. तो स्किन को खिलाने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स है. तो जब हम ये जेल क्लींजर यूज करते हैं, रिफ्रेशिंग जेल क्लींजर, तो थोड़ा सा लेके उसको मसाज करो जेंटली और वॉश ऑफ या कॉटन वूल से थोड़ा सा गीला करके ऐसे ही रहने दो, धोने की भी जरूरत नहीं है. सेकेंड प्रोडक्ट है सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम का सोनिया इल्यूमिनेटिंग जेल. सिंपली अप्लाई करना है स्किन पे, स्प्रेड करना है, छोड़ देना है, कोई मसाज करने की जरूरत नहीं. दिस प्रोडक्ट वर्क्स. प्रोडक्ट यदि क्वालिटी वाला है तो इट वर्क्स. हमें एफर्ट्स करके और बाहर कैसे रगड़ के मसाज देते हैं, वो हमें स्किन के ऊपर मेहनत करने की जरूरत नहीं है. मेहनत करने के लिए है ना बड़ा सेवक, प्रधान सेवक एलोवेरा है हमारे फॉरएवर का, जो हमें हेल्प करता है. ठीक है, उसके बाद थर्ड कंपोनेंट है रिफाइनिंग जेल मास्क. रिफाइनिंग जेल मास्क का भी यही है कि आप सिर्फ लगाओ, छोड़ दो, 5 या 10 मिनट में स्किन एब्जॉर्ब्स एंड स्किन स्टार्ट्स लुकिंग प्लम्पी. फोर्थ प्रोडक्ट है सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर. ये भी एलोवेरा और बोटेनिकल से बना हुआ है. तो ये हो गया सोनिया डेली स्किन केयर सिस्टम. आया समझ में? 4 कंपोनेंट्स, रिफ्रेशिंग जेल क्लेंजर, सोनिया इल्यूमिनेटिंग जेल, रिफ्रेशिंग जेल मास्क और सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर. ये चारों प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं. अभी सेकेंड सिस्टम बताते हैं एलोवेरा का, हमारा फॉरएवर का सोनिया स्किन केयर कलेक्शन. इसमें है फर्स्ट कंपोनेंट है प्योरीफाइंग क्लेंजर. वो क्लेंजिंग का काम करता है, जैसे कि कॉटन वूल में ले लो या हाथ में ले लो, थोड़ा सा वेट चेहरा करो, हाथ वेट करो, लगाओ, हल्का सा घुमाओ, वॉश ऑफ या थोड़ा सा वाइप कर लो. सेकंड है डीप क्लेंजिंग एक्सफोलिएशन. ये एक स्क्रब का काम करता है, पर कई लोगों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो स्क्रब, हमारा तो एलोवेरा स्क्रब बहुत ही अच्छा है. वो स्मॉल बेबीज से लेके हर कोई यूज कर सकता है, 0 to 100 इयर्स.
पर फिर भी किसी के पास वो स्क्रब अवेलेबल नहीं है तो उसका एक ऑप्शन अवेलेबल है, डीप क्लेंजिंग एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन मींस स्किन के ऊपर का डेड स्किन निकालने का प्रोसीजर, उसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। ओके, थर्ड हमारा सोनिया स्किन केयर कलेक्शन में है एलो रिफ्रेशिंग टोनर। अभी टोनर क्या करता है, जब हम बाहर जाते हैं हमें पसीना आता है तो कुछ लोगों को ऐसे 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 पोंछने की आदत है पसीना, दैट इज अ रॉन्ग हैबिट। यू शुड ऑलवेज डू लाइक दिस, प्यार से डील करो ना स्किन के साथ, ये क्या हुआ स्किन पोंछने के लिए, दैट इज रॉन्ग। तो कुछ लोग ऐसा पोंछते हैं तो उनके पोर्स ओपन हो जाते हैं, पोर्स ओपन हो जाते हैं, फिर वो बाहर धूल में घूमते हैं। जब डस्ट के स्टॉर्म्स आते हैं दिल्ली जैसे जगह में तो वो डस्ट अंदर एक्यूमुलेट हो जाती है, डस्ट डर्ट, फिर उसके बाद पिंपल्स एक्ने आना शुरू हो जाता है। इसके लिए जब आप घर पे आते हो डेली तो एलो एवोकाडो सोप हुआ या हमारा दूसरा कोई क्लेंजर हुआ, उससे क्लीन करने के बाद आप टोनर यूज करोगे तो ये अल्कोहल फ्री टोनर है, स्किन को नुकसान नहीं करता। और जो एक्सेस ओपन हुए हैं पोर्स आपके एक्सेस हीट की वजह से या एक्सेस पसीने की वजह से, उसको मॉडरेट क्वांटिटी में बंद कर देता है, श्रिंक कर देता है, पूरा बंद भी नहीं करता, श्रिंक कर देता है। ये एलो की एबिलिटी है, एलो रिफ्रेशिंग टोनर। फिर हुआ बैलेंसिंग क्रीम। बैलेंसिंग क्रीम की क्या जरूरत है कि ना एसिडिक होना चाहिए स्किन का पीएच, ना अल्कलाइन होना चाहिए, तो ये बैलेंस करने के लिए रखा हुआ है। मैं कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट जानबूझ के नहीं बता रही हूँ। क्या आप टीवी पर जो एड देखते हो स्किन केयर प्रोडक्ट्स के या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के, उसके इंग्रेडिएंट पढ़ के आप प्रोडक्ट लेते हो क्या? नहीं ना। तो इधर तो हम बता रहे छाती ठोक के कि ये तो हमारा वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, और हमारे हर स्किन केयर प्रोडक्ट में 60 to 70% एलो बार्बाडेंसिस मिलर इनर लीफ एक्सट्रैक्ट है। तो और कुछ बताने की जरूरत नहीं। इसके अलावा बेशकीमती इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो बोटेनिकल से और अच्छे स्किन केयर के इंग्रेडिएंट्स हैं, वो आप बाद में भी पढ़ सकते हो। तो क्योंकि कोई भी चीज एकदम रेडीमेड मिल जाए ना, इंसान को उसकी कीमत नहीं पता चलती, इसलिए मैं कभी भी रेडीमेड स्लाइड्स नहीं दिखाती, रेडीमेड इंग्रेडिएंट्स भी पढ़ के उसके फायदे नहीं बताती हूँ, क्योंकि एवरीथिंग एक वर्ड टाइप करो आप, लेमन ट्री ऑयल, आपको गूगल में पता चल जाएगा, है ना। ए गूगल तू ही बता, इसलिए आई एम जस्ट लिस्टिंग डाउन। तो नेक्स्ट है कंपोनेंट नरिशिंग सीरम। तो ये सीरम होता है प्रोटीन बेस्ड होता है, जो थोड़ी सी एजेड स्किन है या एजिंग इज अ प्रोसेस विच नोबडी कैन स्टॉप, पर हम उसको थोड़ा सा अरेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं एजिंग की प्रोसेस को। तो सीरम को भी थोड़ा सा लगा के अप्लाई करके छोड़ देना है, तो उससे स्किन को नरिशमेंट मिलता है। उसके नेक्स्ट फैक्टर है सोनिया स्किन केयर कलेक्शन का डीप मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये तो इतनी सी क्वांटिटी आप ले लो, उसको आप लिटरली साल भर यूज कर सकते हो। इट इज सो गुड, बेस्ट इट इज। यूज करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीमियम रेंज आता है इन्फिनिट बाय फॉरएवर। उसके दो प्रोडक्ट्स मेरे पास इस वक्त अवेलेबल है, दिखाती हूँ। ये है सीरम और है रेस्टोरिंग क्रीम। इन्फिनिट है, ये एक प्रीमियम रेंज है, वो 3 साल पहले हमारी ग्लोबल रैली हुई थी उसमें लॉन्च हो चुका है इंडिया में, आज की तारीख में भी अवेलेबल है। सिर्फ उसके अंदर जो फर्मिंग कॉम्प्लेक्स टैबलेट्स है कोलाजन वाली, वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर हमारा ग्लोबल बिजनेस है, हमारे टीम में ग्लोबली लोग हैं, तो जो लोग इंडिया के बाहर है वो तो यूज कर सकते हैं। दैट इज बेस्ट कि आप यदि जवान बने रहना चाहते हो, आपकी स्किन जवान बनी रहे, तो यंग मेन एंड वीमेन दोनों के लिए है ये। तो इन्फिनिट में पहला तो है हाइड्रेटिंग क्लेंजर, तो इसको आप क्लेंजर की तरह क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा है फर्मिंग सीरम, ये है फर्मिंग सीरम, पंप है इसके अंदर, बिल्कुल हल्का सा 1 या 2 पंप चाहिए, पूरे फेस और नेक को कवर कर सकते हो। उसके बाद इन्फिनिट का रेस्टोरिंग क्रीम, ये मेरा फेवरेट है, साइमन सर का भी फेवरेट है। उसके बाद जो फर्मिंग कॉम्प्लेक्स है दैट इज नॉट अवेलेबल राइट इन इंडिया। बाद में ये सारे प्रोडक्ट्स जो है सोनिया डेली स्किन केयर, सोनिया स्किन केयर कलेक्शन और इन्फिनिट बाय फॉरएवर, ये सारे तो है ही। इसके अलावा मैं ये बोलूंगी कि डेली बेसिस पे आप स्किन को ऊपर से तो अप्लाई कर रहे हो, और डेली हमारे 3 प्रकार के एलो ड्रिंक्स है, वो भी स्किन केयर का ही काम करते हैं, उनको पीजिए। और ये हमारा C+ का टैबलेट है, ये भी 2 टैबलेट्स डेली खाइए, क्योंकि उससे आपके स्किन में कोलेजन बनेगा। और आर्टिक सी की हमारे ओमेगा 3 की सप्लीमेंट्स है, वो भी आप डेली 2 टैबलेट्स यूज करिए, हफ्ते भर में देखो क्या चमकती है स्किन आपकी। ओके, अभी ये सारे प्रोडक्ट्स तो हो गए,
और प्रोडक्ट्स के ऊपर ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी ब्यूटिशियन की जरूरत नहीं है आपको, इसमें टेक्नीशियन होने की जरूरत नहीं है, कॉस्मेटिक सर्जन होने की जरूरत नहीं है, ये सारे नॉन सर्जिकल मेथड्स हैं और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन यूज इट। और जैसे कि एलोवेरा के अंदर हाइपो एलर्जिक क्वालिटी है, तो उसमें किसी को एलर्जी होने के कोई चांस ही नहीं है, इतने अच्छे प्रोडक्ट्स है हमारे। ठीक है, अभी देखते हैं कि कुछ थेरेपेटिक यूजेस हमारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के, वो भी देखना जरूरी है। ये तो हमने नॉर्मल हर एक व्यक्ति को यूज करना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए वो देख लिया। अभी देखते हैं कि कुछ तो प्रॉब्लमेटिक स्किन हो जाती है किसी ना किसी वजह से, जिसके हमने कुछ फैक्टर्स पहले 10 मिनट में देख भी लिए थे। तो उसमें एक होती है एक्ने या पिंपल प्रोन स्किन। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, आप लिख लीजिए चाहो तो। एक तो है ड्रिंक 3 to 4 लीटर्स ऑफ एलोवेरा पर मंथ, ये जरूरी है। ठीक है, कोई भी एलो ड्रिंक ले लीजिए आप, तीनों फ्लेवर्स में से, या तो बेरी नेक्टर लो, पीछे से लो, या प्लेन एलोवेरा लो। फिर यूज एलो एवोकाडो सोप। ये हुआ एक्ने और पिंपल स्किन, प्रोन स्किन के लिए बता रही हूँ। ड्रिंक एलोवेरा जेल 3 to 4 लीटर्स इन अ मंथ। use aloe avocado soap daily for your body and face. Apply jelly plus propolis cream 4 times in a day. जिनकी भी पिंपल या एक्ने प्रोन स्किन है वो दिन में 4 बार क्लेंजर यूज करो या एवोकाडो सोप यूज करो, 4 बार इसको लगाओ। बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, पी साइज की क्वांटिटी, दोनों मिक्स करो, या तो फिर दोनों ट्यूब्स एम्प्टी करके एक जार में रख लो, एक ऑल पर्पस क्रीम बना लो। इट इज सुटेबल for everybody, for all skin types, for all skin conditions. फिर दूसरा एक स्किन का हमारे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लमेटिक स्किन में पिगमेंटेशन या सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस या बटरफ्लाई मेलाज्मा। यहाँ पे ऐसे ट्रायंगुलर शेप के पैचेस बन जाते हैं। वो या तो हार्मोनल इम्बैलेंस से होता है पिगमेंटेशन, या फिर मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है, या तो फिर पोस्ट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड लेडीज के अंदर हो जाता है, और मेनोपॉजल विमेन के अंदर भी हो जाता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस का। और कभी कभी इन मेन आल्सो इट इज सीन व्हेन दे आर हैविंग अप्रोचिंग देयर एंड्रोपॉज। ओके, ये कभी चर्चा नहीं होती मेंस के एंड्रोपॉज की, पर उनका भी एंड्रोपॉज होता है, तब ये पिगमेंटेशन हो जाता है। यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है नॉर्मली। तो ये इसके लिए क्या करना है, यही 3 से 4 लीटर एलोवेरा पीना है 1 महीने में। देयर इज नो शॉर्टकट। देखो ये ट्रीटमेंट है, आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, किसी भी कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाओ, इतने हार्श ट्रीटमेंट्स होते हैं पिगमेंटेशन के लिए। माइक्रोडर्मा एब्रेशन एक बहुत क्रूएल ट्रीटमेंट है, जो ऊपर का लेयर ऐसे डर्मा रोलर से निकाल देते हैं। बाद में अंदर की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि उसका ग्रेट केयर लेना होता है। जैसे कि इंक्यूबेशन में बेबी को रखते हैं ना, प्रीमैच्योर बेबी को, इतने आपके स्किन का केयर लेना पड़ता है। उससे तो ये हमारा अच्छा है ना, बेस्ट है। और खर्चा कितना है कॉस्टिंग वाइज आप देख लो। आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओ पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए, 25 से 30 हजार रुपए का खर्चा और 0 रिजल्ट, ये भी कभी कभी सामने आएगा। और उसके अगेंस्ट, उसके कंपैरिजन में यदि आप जो मैं बता रही हूँ, इसका आपका कुल मिला के खर्चा होगा 8 से 10 हजार रुपए, और आपको परमानेंसी मिलेगी रिजल्ट्स की, और आप दूसरों को सजेस्ट करके आपका पैसा भी फ्री कर सकते हो। ये भी एक एडेड एडवांटेज है। वो मैं जाते जाते हमेशा ये बात बताते जाती हूँ, क्योंकि एट द बैक ऑफ माइंड कभी भी इंडिया में हमारे ये हमेशा लोगों का होता है कि मेरा खर्चा कितना हो रहा है, मेरे पैसे वसूल होने चाहिए, इसलिए आपके पैसे वसूल करने का भी तरीका बता दिया। ठीक है, अच्छा ये हो गया पिगमेंटेशन, सिमेट्रिकल डर्मेटाइटिस या बटरफ्लाई मेलाज्मा के बारे में। उसके बाद है अभी और कुछ होता है, रीजंस देखते हैं क्या क्या रीजंस है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस और मिनरल डिफिशियंसी, वो भी हमने देखा। हमारे पास रॉयल जेली एक है, तो ये इसके अंदर एक्टिव एंजाइम्स है, और मिनरल्स की डेफिशिएंसी किसी को है ना, एक च्यूएबल डिलीशियस टैबलेट है, टंग के नीचे रखो, इट गेट्स डिसॉल्व, इट इज वेरी डिलीशियस, इट इज माय फेवरेट। एंटी एजिंग इफेक्ट्स जबरदस्त है। आप एलोवेरा पीजिए, स्किन केयर के सारे प्रोडक्ट्स यूज करिए, रॉयल जेली खाओ, आर्टिक सी ले लो, विटामिन सी खाओ, और 1 से 1.5 महीने में आपको आपके घर परिवार में से, फ्रेंड सर्कल में से, प्रोफेशनल सर्कल में से कॉम्प्लीमेंट्स मिलनी शुरू हो जाएगी। रिजल्ट ओरिएंटेड, विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स,
ग्लोबल सर्टिफिकेशंस के साथ, ग्लोबली एक्सेप्टेड और एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ, इतने सारे बेनिफिट्स है। उसके बाद हमारा और एक स्किन केयर प्रोडक्ट है फॉरएवर का, मेरे पास दिखाने के लिए ट्यूब नहीं है, अंडर आई क्रीम है और एल्यूरिंग आईज नाम की एक ट्यूब आती है। वो किसी को आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं या डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, थोड़ा सा एल्यूरिंग आईज और अल्फा ई फैक्टर एक होता है हमारे पास, वो 1 या 2 बूंद डाल के उसको जेंटली ये वाले फिंगर से मसाज करो 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज सोने के पहले। यू विल सी रिजल्ट्स within 1 or 2 months time depending upon the extent of your problem। अंडर आई डार्क सर्कल के साथ और एक चीज है कि आप यदि अच्छे से सो नहीं पा रहे हो तब भी डार्क सर्कल्स होते हैं, तो मेरा ये कहना है, सजेशन रहेगा कि यू शुड हैव क्वालिटी स्लीप और स्किन का हाइड्रेशन अच्छे से रखो, प्रॉपर खाना खाओ और फिर ये प्रोडक्ट भी ऊपर से यूज करो, एल्यूरिंग आईज या अंडर आई क्रीम, बेस्ट रिजल्ट्स। ठीक है, उसके बाद एक चौथी प्रॉब्लमेटिक स्किन आती है टैंड स्किन। टैंड स्किन क्यों हो जाती है? हम सूरज की धूप में निकलते हैं इसलिए स्किन टैंड हो जाती है, मतलब जो व्यक्ति जिस कॉम्प्लेक्शन का है उससे उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा और डार्क दिखने लगता है, दैट इज कॉल्ड टैंड स्किन। या हम कभी समुद्र किनारे चले गए, गोवा चले गए, हफ्ते भर बाद हम जब इधर आते हैं वापस तो हमारी स्किन टैंड हो जाती है खारी हवा से। ओके, तो टैंड स्किन के लिए हमारे पास क्या है? सनस्क्रीन लोशन है, R3 फैक्टर है, एलोवेरा जेली है, ड्रिंक एलो और स्क्रब भी है हमारे पास। अभी दिखाने के लिए मेरे पास ट्यूब नहीं है पर ट्यूब फॉर्म में है, या फिर एक्सफोलिएटर भी है हमारे पास। तो ये हुआ टैंड स्किन का ट्रीटमेंट। उसके बाद टैंड नेक है। टैंड नेक है ना, तो उसके रीजन कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी किसी को थायराइड की वजह से भी नेक में, बैक में थोड़ा सा डार्कनेस आ जाता है, तो उसके लिए कस्टमाइज्ड अप्रोच है आपकी जो अपलाइन है, या जिस किसी व्यक्ति ने आपको इस सेमिनार में, इस प्रेजेंटेशन में बुलाया है, गेट इन टच विद दैट पर्सन, दे विल गाइड यू कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमारे प्रोडक्ट्स वर्क करेंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। और उसके बाद ये फ्रैकल्स या क्रोज फीट, आंखों के यहाँ पे ऐसे लाइंस हो जाती है एजिंग की वजह से, और डार्क स्पॉट्स आने लगते हैं, तो उसके लिए भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, रॉयल जेली खाओ, विटामिन सी, हमारा C+ के टैबलेट्स खाओ, ड्रिंक एलोवेरा एनी फ्लेवर, आर्टिक्सी लो, और इन्फिनिट का रेस्टोरिंग क्रीम यूज करो, बेस्ट फॉर एंटी एजिंग। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, बहुत ही अच्छा है ये। Like that, there can be various skin types and various skin conditions as per the age and lifestyle and eating patterns. So you can consult me, or you can consult your upline or anybody who has invited you in this seminar. अभी कुछ combinations मैं बता रही हूँ. Let's see the time. है हमारे पास तो टाइम, कुछ कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ कि फॉरएवर स्किन केयर प्रोडक्ट्स की जो रेंज है। Doctor, there is no problem on time. The screen is all yours, and we have a membership for 500 people, so don't worry. You can talk as much as you want. Fine, thanks. तो अभी आप लोगों का समय आया है नोट डाउन करने का। आई होप यू ऑल हैव नोटपैड एंड पेपर। कुछ पैक्स मैं बता रही हूँ, फेस पैक्स, क्यों घर के घर में आप अपने ब्यूटिशियन खुद ही बनो। आइकिया स्टोर्स होते हैं, अभी इंडिया में हैदराबाद में एक आइकिया स्टोर खुला है, फॉरेन कंट्रीज में तो होते हैं, तो वहां पे DIY मींस डू इट योरसेल्फ सीरीज होती है, जिसे फर्नीचर के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं और इंस्ट्रक्शनल मैनुअल आता है, अपने आप कस्टमाइज्ड फर्नीचर बना सकते हो। ऐसे मैं बोलूंगी कि ये DIY डू इट योरसेल्फ सीरीज है हमारा, कि आज से अभी कोरोना में आप ब्यूटिशियन के पास जाओ या सैलून में जाओ, सैलून ट्रीटमेंट्स हैव बिकम सो कॉस्टली दीज डेज। उनके जो पहनते हैं PPE किट या जो सैनिटाइजिंग स्प्रे यूज कर रहे हैं या थर्मल चेक कर रहे हैं, तो सबका पैसा कस्टमर से वसूल कर रहे हैं। वो जो थ्रेडिंग के लिए, आईब्रोज के लिए आप 30 रुपए देते थे, उसके लिए आप 100 रुपए दे रहे प्लस GST। एक क्लीनअप के लिए आप 350 या 400 रुपए दे रहे थे, उसके लिए अभी 750 रुपए दे रहे हो। एक फेशियल का आप 1200 रुपया दे रहे थे, उसका आप 2500 दे रहे हो सैलून ट्रीटमेंट्स का। ऊपर से रिस्क तो है कोरोना की कि यू माइट गेट इन्फेक्टेड, कि आप कितना भी ऊपर से बोलो कि फेस मास्क लगाया है, सैनिटाइज किया है, फिर भी यू नेवर नो, देयर आर ऑलवेज चांसेस यू माइट कैच इन्फेक्शन। तो इससे अच्छा है कि अपना सेल्फ हेल्प मेथड यूज करो,
डू इट योरसेल्फ। तो अभी लिख लो, फेस पैक्स में कुछ बता रही हूँ। नंबर 1, फेस पैक नंबर 1, फॉरएवर हनी, फॉरएवर बी हनी। कुछ लोग नए होंगे इस प्रेजेंटेशन में, उनके जानकारी के लिए मैं बताऊंगी, पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में बी हनी लिखा हुआ एक भी हनी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सभी हनीज पे दिस हनी, दैट हनी, किसी का नाम, किसी के कंपनी का नाम लिखा होता है। टेल मी वन थिंग, हु मैन्युफैक्चर्स हनी? बीज मैन्युफैक्चर्स हनी, है ना? वो तो एक नेचुरल प्रोडक्ट्स है, तो बीज को क्रेडिट मिलना चाहिए ना बनाने का। तो हनी के ऊपर यदि लिखा हुआ है बी हनी, तभी वो हनी प्योर हो सकता है। ये हमारा दुनिया का सबसे अच्छा हनी है, एंटीसेप्टिक, एंटी एलर्जिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल, बेस्ट फॉर हाइड्रेशन ऑफ स्किन। खाओ भी, लगाओ भी, खिलाओ भी, बेचो भी, ठीक है? तो फॉरएवर हनी 1 टीस्पून। सेकंड इंग्रेडिएंट कर्ड 1 टीस्पून, C+ टैबलेट 1/4 लेके उसका पाउडर बना दो, और एलो एक्टिवेटर 2 to 3 ड्रॉप्स, उसको मिक्स कर लो। और ये फेस पैक आप हफ्ते में या 3-4 दिन में एक बार लगा सकते हो। 15 से 20 मिनट लगाओ, वॉश ऑफ, सी द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर। लगाने के पहले फोटो खींचो, लगाने के बाद में फोटो खींचो, खुद ही आप छा जाओगे सोशल मीडिया पे बिफोर एंड आफ्टर इफेक्ट देख के। इतना जबरदस्त फॉर्मूला है ये फेस पैक का। फेस पैक नंबर 2, एलोवेरा जेली 1 टीस्पून। और बाजार में एक एडिबल कैम्फर आता है जिसको भीमसेनी कपूर बोलते हैं, एडिबल कैम्फर, जो तिरुपति के लड्डूज में होता है। सो दैट एडिबल कैम्फर 1 पिंच एंड 1 टीस्पून ऑफ एलोवेरा जेली, मिक्स वेल। और कहीं भी स्किन पे पैचेस आए हुए हैं या थोड़े से डैमेज स्किन है, उसके ऊपर लगाओ 15-20 मिनट, दिन में 2-3 बार भी लगा सकते हो। ऐसा 1 या 2 महीना लगाने से या 3 महीना लगाने से, और इवन बिफोर दैट यू कैन सी रिजल्ट्स। ओके, पैक नंबर 3, फेस पैक नंबर 3, हमारे पास एक मरीन मास्क है, दैट 1/2 टीस्पून, फिर 1/2 टीस्पून फॉरएवर बी हनी and 1/2 teaspoon activator, mix well, apply for half an hour, 15 minutes depending upon your time। 10 मिनट से 30 मिनट तक कितना भी लगा के रख सकते हो, नो हार्म। उसके बाद वॉश ऑफ, बाद में मॉइस्चराइजर लगा लो या जेली प्रोपोलिस क्रीम मिक्स करके, जो ऑल पर्पस क्रीम हमने बना के रखी है खुद की, वो लगा दो। बेस्ट मेकअप जैसा लगेगा आपका फेस, और AM to PM you will keep on loving your skin will thank you। Next, face pack number 4, aloe vera jelly और एलोवेरा प्रोपोलिस मिक्स टुगेदर, और उसके अंदर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ हनी, दैट इज फॉर स्किन हाइड्रेशन। किसी किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, तो एलो प्रोपोलिस, एलो जेली एंड हनी, 3 चीज मिक्स करके। 5th पैक, एलोवेरा जेली 1 टीस्पून, 1 पिंच ऑफ होममेड टर्मेरिक पाउडर, हल्दी, और पेस्ट ऑफ 1/2 टीस्पून बीटरूट जूस। हल्दी फ्रेश भी मिल रही है आजकल मार्केट में, या आप छोटा सा एक पॉड ले लो, उसको ग्राइंड करो या उसको ग्रेट करके उसका थोड़ा सा जूस निकलेगा, दैट यू कैन ऐड। और होममेड टर्मेरिक पाउडर है तो दैट यू कैन यूज, एंड 1/2 टीस्पून बीटरूट जूस उसके अंदर मिक्स करो। एलोवेरा जेली 1 टीस्पून मिक्स करो, वो फेस पैक लगाओ, योर स्किन विल ग्लो, रेडिएंट स्किन बनती है। पैक नंबर 6, this is for body polish, not only for face and neck, you can use it for entire body। तो यदि किसी की शादी है, किसी का कोई स्पेशल फंक्शन है, you want to flaunt in party, you can use this as a body polish और body scrub। इसके क्या इंग्रेडिएंट्स है? पपाया पल्प, जो पका हुआ पपीता होता है, राइप पपाया 1 टेबलस्पून, उसका पल्प लो, या फुल बॉडी के लिए यूज करना है तो यू माइट रिक्वायर 1 फुल पपाया पल्प। देन एलोवेरा जेली 1 टेबलस्पून, एलो स्क्रब हमारे पास है, अभी नहीं है मेरे पास दिखाने के लिए, हनी एंड एक्टिवेटर। उसका एक अच्छा सा बैटर बना लो और यूज इट, स्क्रब इट ओवरऑल होल बॉडी, face, neck, back, stomach, legs, hands, everywhere।
उसके बाद उसको सेलोफेन रैप करके छोड़ दो 10 से 15 मिनट। देन टेक अ शावर एंड स्टीम। उसके बाद में मॉइस्चराइजर अप्लाई करो, जो भी रेंज आपके पास अवेलेबल हो घर में, फॉरएवर का ही यूज करना है सब कुछ। ओके, तो पपाया पल्प, एलोवेरा जेली, एलो स्क्रब, हनी, फॉरएवर बी हनी एंड एक्टिवेटर. This can be used for face wash. This can be used as a body wrap or body polish. 7th body pack, face pack. Castor oil half teaspoon, aloe vera jelly 1 teaspoon, under eye cream half teaspoon, mix together and you store it in a one small डब्बी, एक कंटेनर में भर के रखो। तो ये स्पेशली जहां जहां स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स ऑफ एजिंग आए हैं, फेस पे आते हैं, या फिर डार्क सर्कल्स आते हैं, या पफी आई बैग्स हो जाते हैं, वहां पे यूज करने के लिए ये अच्छा रहेगा। ये घर में बना हुआ क्रीम है विथ ऑल अवर प्रोडक्ट्स, फॉरएवर प्रोडक्ट्स। 8वां है, दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू टू प्रिपेयर अ स्किन ऑइंटमेंट घर के घर में। कैसे? स्पेशली कभी कभी एंट्स है या इंसेक्ट बाइट्स हो जाते हैं, या पैर के टोज में कंटिन्यूअस जो लोग सॉक्स वगैरह पहन के रखते हैं उसमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है लेग्स में। तो इंसेक्ट बाइट्स या फंगल इन्फेक्शन में स्किन में, हाथ पैर नेल्स में किसी किसी को हो जाता है। सोरियासिस पेशेंट्स या एक्जिमा पेशेंट्स को भी नॉर्मली ये होते रहता है, या अदरवाइज ऑल्सो इंसेक्ट बाइट्स, फंगल इन्फेक्शन या मस्किटो बाइट्स। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल हाफ टी स्पून, फॉरएवर हनी हाफ टी स्पून, एलोवेरा जेली हाफ टी स्पून एंड प्रोपोलिस क्रीम हाफ टी स्पून। इस सबको मिक्स करके एक छोटे से कंटेनर में भर के रखो। दैट इज लाइक अ ऑइंटमेंट। कुछ भी इंसेक्ट बाइट हुआ, कट्स हुआ, बर्न्स हुआ, मस्किटो बाइट हुआ, या कुछ फंगल इन्फेक्शन हुआ, ओके। उसके बाद में 9th यूज बता रही हूँ हमारे फॉरएवर प्रोडक्ट्स का। एक और है नेल्स के लिए, क्यूटिकल सॉफ्टनर। नेल पॉलिश हम लगा के रखते हैं ज्यादा समय तक, या नेल एक्सटेंशंस करके रखते हैं, या नेल आर्ट करके रखते हैं, तो ऑल दोज आर केमिकल्स, ठीक है। जब रिमूव करने के बाद में उसके आजू बाजू की स्किन अफेक्ट हो जाती है, क्यूटिकल्स भी डेवलप हो जाते हैं। फिर सम पीपल हैव दिस टेंडेंसी, ऐसे ऐसे करके निकालते रहते हैं क्यूटिकल्स। तो हमारा जो एलो लिप है ना, दिस इज बेस्ट क्यूटिकल सॉफ्टनर। तो ये एलो लिप थोड़ा सा इसमें से स्क्रैप ऑफ कर लो टूथपिक से, 1/4 टीस्पून जितना एलोवेरा जेली, और ये मिक्स कर लो। इसके अंदर बीज वैक्स है। इट इज अमेजिंग प्रोडक्ट, यू नो, इतना वर्सेटाइल है। एक दिन में 1 घंटा सिर्फ इसी के ऊपर बोलूंगी, आज नहीं, किसी और दिन। तो एलो लिप्स 1/4 टीस्पून, एलोवेरा जेली, और जो हमारा मॉइस्चराइजिंग लोशन है, ये 3 चीजें एक साथ मिक्स करके रखो एक छोटे से डिब्बी में। दैट इज योर क्यूटिक्यूलर सॉफ्टनर क्रीम। पैर के और हाथ के जो उंगलियां हैं उनके नाखूनों को लगाने के लिए क्यूटिकल सॉफ्टनर। और पेडिक्योर मैनिक्योर आप घर में करो, सैलून में और पार्लर में जाना थोड़ा रिस्की है, तो घर में ही पेडिक्योर मैनिक्योर करके वो क्यूटिकल्स थोड़ा लगा के रखो। उसके बाद वो आराम से निकलते हैं, हार्शली निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको। उसके बाद आई लैशेस और आईब्रोज के लिए एनहांस करने के लिए क्या क्या करना है? एक तो एलोवेरा जेली 1 टीस्पून, एलो लिप 1/4 टीस्पून स्क्रैप ऑफ करके ले लो, 1/4 टीस्पून कैस्टर ऑयल, 1/4 टीस्पून वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये सब मिक्स करके रख लो एक डिब्बी में। अप्लाई एवरी नाइट आईब्रोज के ऊपर और आई लैशेस के ऊपर। किसी किसी की आईब्रोज बहुत थिन होती है और किसी किसी के आई लैशेस भी थिन नहीं होते हैं, तो उसको वॉल्यूम देना है या बढ़ाने हैं, तो उसके लिए दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला। उसके बाद 11th टिप, एलो एक्टिवेटर और फॉरएवर कैन इट कैन बी अप्लाइड। हाँ, ये बताना भूल गई मैं, एलो एक्टिवेटर और एलोवेरा अपना फॉरएवर हनी, बी हनी, 2 चीज मिक्स करके रखो, आई ड्रॉप्स बना के रखो अपने। अभी आजकल सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है और दिल्ली बॉम्बे जैसे जगह में पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो काजल की तरह हमारा ये फॉरएवर बी हनी। अभी आप बोल रहे स्किन केयर में ये क्या बता रही है, तो आंखों के अंदर भी स्किन है, मुंह के अंदर भी स्किन है, व्हाई डू वी फॉरगेट अबाउट दैट? तो इसलिए बता रही हूँ, थोड़ा सा ये ले लो हनी, फॉरएवर बी हनी, और काजल की तरह आंखों में लगाओ। जबरदस्त जलन होगी 10-15 मिनट तक, पर 2 या 4 दिन या 5 दिन अप्लाई करने के बाद आपको पता चलेगा आंखों की रोशनी, विजन इतनी इंप्रूव हो जाती है आपकी
कि यू कैन सी योरसेल्फ, और कभी कभी चश्मे का नंबर भी आगे पीछे हो सकता है, इतने जबरदस्त रिजल्ट है। और एक्टिवेटर और ये फॉरएवर बी हनी दोनों इक्वल क्वांटिटी में मिला के अच्छे से हिला के आई ड्रॉप्स बनाओ। डेली आप कहीं से भी आ जाओ, या ये मोबाइल पे या इस पे स्क्रीन पे कंप्यूटर पे काम करने के बाद आंखों में डाल के सो जाओ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, आई पावर अच्छा होता है, विजन अच्छा होता है। नेक्स्ट है ये एलो लिप्स का और एक यूज मैं बताती हूँ जाते जाते। एलो लिप्स कैन बी यूज, जैसे आपने मेकअप कर लिया और कहीं जा रहे हो, तो कभी कभी क्या होता है किसी की नाक स्ट्रेट नहीं है, मेरे जैसी छोटी नाक है, और किसी का ये पोर्शन भी अच्छा नहीं है, तो थोड़ा सा उसको बढ़ाना है, एनहांस करना है, तो थोड़ा सा एलो लिप लेके इसको स्लाइटली नोजी पे ऐसा और थोड़ा सा चिक्स पे लगाने से इंस्टेंट शाइन आ जाता है और थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है मेकअप आपका, और अच्छा लगता है, ग्लिटरिंग लुक देता है। तो ये एलो लिप्स का और एक यूज हुआ स्किन केयर के लिए आपके, और स्किन एनहेंसमेंट के लिए। और दूसरा और एक बताना भूल गई थी कि जब किसी की बहुत ड्राई स्किन है और डेली सनस्क्रीन यूज करना है, तो सनस्क्रीन के साथ आप मॉइस्चराइजर थोड़ा सा डाल के यूज करो। अल्फा ई फैक्टर भी हैंडी रखो हमेशा, तो कभी इंस्टेंट फेशियल करना है आपको, भागना है कहीं पार्टी में जाना है, तो सिर्फ अल्फा ई फैक्टर थोड़ा सा लगाओ स्किन पे, स्प्रेड करके उसके ऊपर मेकअप डालो, क्या जबरदस्त इफेक्ट आता है। और डेली इस्तेमाल करो एवोकाडो सोप, स्क्रब एलोवेरा का हमारा, और ये सारे फॉरएवर के प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदिए, यूज कीजिए। और ये तो हुई थियरी, और मैं तो यूज कर रही हूँ, रिजल्ट्स आपके सामने हैं, और हम में से सारे व्यूज यूज कर रहे हैं। और जिस किसी ने यूज नहीं किया है वो यूज करे और 15-20 दिन में फीडबैक दे, जिस किसी ने आपको इनवाइट किया है मीटिंग में। और आई एम रियली विशिंग एवरीबडी हैप्पी दशहरा एंड कमिंग फेस्टिव सीजन। आपका सबका अच्छा जाए, और मेक स्किन केयर योर टॉप प्रायोरिटी फॉर ऑल गुड रीजंस। अभी एक जाते जाते कॉस्टिंग की बात करती हूँ, क्योंकि सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, वर्ल्ड बेस्ट एलोवेरा है, तो क्या कॉस्ट क्या है? यदि मैं बोलूं कि कॉस्ट टोटली फ्री है, या हमारे प्रोडक्ट्स कॉस्टली बिल्कुल भी नहीं है, हमारे सारे प्रोडक्ट्स कॉस्ट इफेक्टिव है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद में द सेशन विल बी ओपन, टाइम बचता है तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए। इन्फिनिट का एक रिस्टोरिंग क्रीम है जो 48.2 ग्राम्स क्वांटिटी है, एमआरपी उसकी है 4136 रुपीज, उसका प्रेफर्ड कस्टमर प्राइस है 3457, जिसको 15% एमआरपी में डिस्काउंट मिल जाता है, और होलसेल प्राइस है 2847, जिससे 5% से 18% तक का डिस्काउंट ओवर एंड अबाव मिल जाता है। अभी जो वन टाइम क्लीन अप आप करने जाते हो पार्लर में या सैलून में, तो कॉस्ट आता है 600 to 750 या 1000 रुपीज तक। ओके, और ड्यूरिंग पैंडेमिक इट इज रिस्की एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और एक गुड फेशियल कैन कॉस्ट यू around 2000 rupees to 4500 rupees पर सेशन। एंटी एजिंग फेशियल या थेरेपेटिक सेशन करने जाओ कॉस्मेटिक सर्जन या कॉस्मेटिशियन के पास, तो और भी कॉस्टली है, 5000 तक का वन टाइम ट्रीटमेंट का खर्चा है। और फिर देयर इज अ रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड आल्सो। हियर इफ यू आर अ होलसेल बिजनेस पार्टनर, यू गेट 35 to 48% का बेनिफिट ऑन एमआरपी। एंड इज इट कॉस्टली और कॉस्ट इफेक्टिव? आप खुद देखिए, एक सारे प्रोडक्ट्स घर में बसा लो, जो आपके पार्लर का 1 महीने का खर्चा होता है, वो 3 महीने के पार्लर के खर्चे में शायद 1.5 या 2 साल का आपका पूरा पार्लर घर में ही हो जाएगा, और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और करते करते लगाते लगाते कॉम्प्लीमेंट्स मिल जाएंगे आपको, आप खुद खुश, आपको देख के लोग भी खुश, लड़कियों की शादी जल्दी हो जाएगी, और मैच मेकिंग के लिए आसान रहेगा, और कोई यंग दिखना चाहता है तो वजन बना रहेगा, और आप लोगों को देख के प्रोत्साहन मिलके प्रेरित होके और भी लोग बिजनेस में जुड़ेंगे, तो आपके प्रोडक्ट्स फ्री निकल जाएंगे। तो ये अभी कॉस्ट इफेक्टिव है या कॉस्टली है, यू आर द बेस्ट जज। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आई होप आप लोगों को कुछ जानकारी मिली हो, कुछ नॉलेज मिला हो तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। प्रोडक्ट यूज करने से ही मजा है, महज बात करते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ओवर टू साइमन सर, थैंक यू वेरी मच गाइस। Yeah, thanks, amazing. I mean, the breakup that you gave, I think people should consider themselves very lucky. बहुत धन्यवाद बोलने चाहिए कि आपने इतना सीक्रेट्स, क्योंकि ब्यूटिशियन कभी कभी अपना सीक्रेट दूसरे को नहीं बांटती है, बट आपने वो जो फॉर्मूलाज और वो बहुत सब
इतना डिटेल्स दिया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, हमारे यहाँ क्वेश्चंस आए हैं 2-3, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्वेश्चंस। आज का जो टॉपिक है स्किन केयर, तो टॉपिक स्किन केयर पर रखो। आपको जो सवाल करना है स्किन केयर पे, मेरे को डायबिटीज है, आर्थराइटिस, वो क्वेश्चन अभी नहीं लेंगे हम लोग, हाँ क्योंकि हाँ बिल्कुल। तो आई वुड प्रेफर टू स्टिक। ओके, एक क्वेश्चन है बाय वन लेडी दैट आई एम एलर्जिक, मेरे को एलोवेरा से एलर्जी है, तो बिफोर डॉक्टर आंसर्स इट, कैन आई आंसर डॉक्टर विद योर परमिशन? यस यस, श्योर श्योर श्योर। बिकॉज ये क्वेश्चन आया कि हम लोग एलोवेरा से एलर्जी है, पहले आप कौन सा एलोवेरा यूज करें? वो बाबा का एलोवेरा कर रहे हैं कि कोई जो क्रीम है? नहीं, वो क्रीम यूज करे जिसमें क्रीमी ग्रीन कलर दिखता है पूरा। तो अगर आप वो बाबा लोग का एलोवेरा यूज कर, मतलब मेरा किसके अगेंस्ट कुछ नहीं है, लेकिन बोल रहा हूँ आप कौन सा एलोवेरा यूज करते हैं? एलर्जी आपको स्किन पे क्यों हो रही है? इट इज द टाइप ऑफ एलोवेरा यू आर यूजिंग, यू माइट बी यूजिंग विच इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये मेरा आंसर है, बट वील आंसर डॉक्टर। देयर इज अ क्वेश्चन हियर कि आई हैव ऑल योर प्रोडक्ट्स हैव एलोवेरा बट आई एम एलर्जिक टू एलोवेरा। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या यूज करके दिखा है एलोवेरा का, और फॉरएवर के एलोवेरा का क्या क्या यूज करके दिखा है? So ये क्वेश्चन, फॉरएवर के एलो ड्रिंक्स आपने कितने महीने तक यूज किए हैं, किस क्वांटिटी में कंज्यूम किए, और एलर्जी मतलब क्या हुआ है आपको? आप शायद जिसको एलर्जी बोल रहे हैं वो हीलिंग क्राइसिस भी हो सकता है। वेरी गुड। When the body is in the process of detoxification, कुछ हीलिंग क्राइसिस ऑब्जर्व होते हैं कि स्किन पे कुछ इरप्शन आता है, किसी को डिसेंट्री या डायरिया फील हो सकता है, तो वो कोई एलर्जी नहीं है, उसमें थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। और एलर्जिक है तो एलर्जी का टेस्ट करवाया है कि आपने? किस दावे के साथ कह सकते हो कि एलर्जी है? एलर्जी का टेस्ट कराओ, दिखाओ प्रूफ के साथ कि है एलर्जी, तो मत यूज करो। पर मेरा यह कहना है कि वो एलर्जी नहीं होगी, दूसरा कुछ होगा, या हीलिंग क्राइसिस ही होगा। तो जिस किसी ने आपको मीटिंग में इनवाइट किया, थोड़ा सा उनके सामने बैठ जाइए। यहाँ पे जो लोग हैं हमारे कोर कमेटी के, वो सभी नॉलेजेबल है, नहीं तो हम लोग भी है हेल्प करने के लिए, तो बैठ के डिस्कस किया जा सकता है ना? आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस यस, फैंटास्टिक एंड वेरी वेरी क्लियर, क्योंकि कभी कभी एलर्जी तुम लोग ने कुछ खाया होगा, हाँ वही, इसीलिए इसीलिए और सामने उसमें बैठ के एलर्जी बात होगा करेंगे तो तो यू पता ब्लेम। चलेगा। या और हाँ, नाम एलोवेरा का आ रहा है किसी दूसरे। और कौन सा कोई बाबा का या कोई हाँ हाँ, आधा एलोवेरा तो है ही नहीं, आधा में वही। कंपनी में पूरा, अभी कुछ बोलने नहीं चाहिए मैं। एक्चुअली आई एम हम्बल इन आंसरिंग, ये मैं सब बोली नहीं मैंने, इसीलिए बोला कि पर्सनल मीटिंग में ये सब चीजें डिस्कस हो सकती है। तो ओके, another question is, my auntie is allergic to honey, can she use forever bee honey? यस, शी कैन यूज। Okay, fantastic. So very straightforward answer, you can यस use. The next question is, bee honey having fructose only even diabetic people can use, can diabetic यस people also यस, use? वेरी By the फ्यू। way, हम लोग का जो ट्रेनिंग है स्किन के है, but this is a different topic, but doctor will answer. हाँ हाँ, डायबिटिक्स है ना, तो ऊपर से लगाने में तो प्रॉब्लम नहीं है उनको। जैसे कि स्किन केयर के लिए मैंने सारे उपयोग इसके ऊपर से लगाने के ही आज बताए हैं, आज तो कंजम्पशन वाला कुछ बताया ही नहीं था। बट ओके, इफ यू आर डायबिटिक, वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ डायबिटिक पीपल आर हैविंग प्रॉब्लम विथ फ्रुक्टोज। तो यदि आपको है तो आप खाना पीना अवॉइड करो हनी, तो आप स्किन पे तो लगा सकते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। The another question is, I have fungal infection. For fungal infection, which products we should use I related think to we have forever? given the formula. We have given the formula for fungal infection. लिख लिया होगा लोगों ने। Okay, then एक question है by Alka, but I didn't understand. I am using normal aloe vera on my face. Now Normal normal, aloe I don't vera know. means, normal Yeah. means which? This one? No, but I just want to know from Alka, are you using forever aloe vera or some other aloe vera? So this question I didn't understand, but I'm using normal aloe vera on my face, and then I got pimples. Oh, you might be using the Baba types. There are 400 varieties of aloe vera. Which one you are using, we don't know. The session is about forever aloe vera skincare products. So we spoke about only forever products, and we can talk about our products. We can vouch for our products. So you have to specify which aloe vera you are using, then I can answer it correctly. Another question is, sorry, only 5 questions were there, but I think they love you so much that they have kept on asking. कोई तो डायबिटिक आर्थराइटिस पूछा है तो वो क्वेश्चन मैं ले रहा ही नहीं हूँ, क्योंकि स्किन केयर का टॉपिक है।
we are using aloe toner as a makeup remover. Is it okay? Yes, yes, fine, no problem. Okay. Okay. Pigmented. Is there any face wash in Forever? Yes, hand and this can be used for face wash. Cleanser can be used for face wash. Then aloe avocado soap can be used for face wash. No problem. And I think our Infinite, there's a Infinite cleanser. cleanser is also there. 3 types of. In fact, for my face, I'm using the Infinite myself. So you can see your skin has become radiant. Yes, chamak raha thoda. So, and I don't go to the salon because salon में क्या होता है, डब्बा एक कंपनी का है, मैं किसी एक सलून का बुरा नहीं, and not हाँ, और नहीं वो डब्बा बहुत famous brand है, मैं किसी, and all salons don't do this, but most of the ones where you get the 300-500 patient, वो डब्बा जो है ना वो भी बड़ा ब्रांड का है, अंदर वो 200 रुपए का क्रीम है, जो 1 किलो का ब्यूटी सेंटर में मिलता है ना वो टाइप का क्रीम है. So anyway, I think most of the questions are answered. Let me see this. Anything else related? Fantastic. Training was very nice. Very thankful. Amazing session. Thank you, ma'am. Lots of love. You are lovely and very informative. Lovely session. तो तारीफ तो wholesale में है तो then anything else be okay? I suggested lady. I suggested a lady aloe vera gel, aloe vera plus propolis. She get very small pimples. What can I say her? Initially, as I said, it's a healing crisis. Aloe vera has lignin and saponin in it. Lignin will penetrate deep down. It will throw the dirt away. तो वो प्रोसेस में है. He is in a process of that, so she has to keep patience in that. और जिस किसी ने आपको इनवाइट किया उनके साथ बैठो, थोड़ा जानकारी मतलब उनको भी होती है. अदरवाइज देखो थोड़ा टाइम लगेगा. उनको ये भी एलोवेरा दो, सिर्फ ऊपर से लगाने से कभी कभी होता नहीं है, तो ये भी पियो, थोड़ा पानी भी ज्यादा पियो. Then you get detoxified. उसके बाद में nourishing comes. Okay, sorry. One more question, please. Advise products for body acne and mark cure. Body acne and mark cure. That we have given already. Okay. What I'll do is we have recorded this video, so in another 2 days you will get it on our YouTube channel. So everybody has the formula with them. Yeah, so you can see it aram se whenever you have time. But I always advise that when you're taking training, always keep a pen and paper so you can take notes. People don't do that and then they start, That's why I don't prepare slides or slides में इसलिए नहीं बनाती हूँ, so that they absorb more and more and they write down. एक question है for eczema. What are the products we should take? बोला है एक्जिमा के लिए भी. एक्जिमा के लिए ट्रीटमेंट है, देखना पड़ेगा how much is the extent, since when you are having the problem, you are into which age group. And then we have you'll have to take some supplements also like Arctic Sea, Royal Jelly, C+, along with aloe drinks 3 to 4 liters minimum in a month. And then topical application ki products. All these things in a combination will work for eczema. Okay. Okay. Then they're sorry. I'm sorry. You're not finished. Yeah. Have you finished? Yes. Okay. Sorry. Because क्या question इतने आ रहे ना, I want to make most of it. But अभी इसके I think this is the last question we'll take because we normally only take 5 questions. Which product can we use for night cream? For a night cream, which product can we use? Earlier we used to have recovering night cream. Right now I think it is out of shelf. So jelly and propolis, if you mix together and add little alpha factor, that can be all-purpose cream. So at night you clean your face with aloe cleanser and then apply jelly, propolis and activator together and sleep. That's a all-purpose cream. That can be a night cream as well as day cream. Okay, I think we'll take the last 2 questions. What products can we use for stretch marks? That's one. And second question is for hair. So we'll first come to hair. What products can we use for hair for more nutritional? Conditioners. Then we have aloe first. Then we have aloe vera jelly and aloe activator. Then you can use royal jelly. You can use RG also. So it will enhance hair growth and it will strengthen your hair roots. And drink aloe vera gel. Can activator be used on your hair? Yes, activator? I told you jelly and activator together, and aloe first also can be used. I told already. Okay, the last question now. This is 100% last. Stretch marks. For stretch marks, what are the products you must use? Aloe vera jelly, scrub, and alpha factor.
they can use it. So I think they should start using this before or after. What is it? There's a No, during also they can use, and after also they can use. because normally people get stretch marks in pregnancy time, right? Yes, so after they can start using as a postnatal correction. When for postnatal figure correction, they should start using anti-stretch mark treatment also. Wow, wow, fantastic. And I think there are a lot of more questions, but there are many people who ask you arthritis, diabetes. I say, boy, this is a skincare training. Next time. So next time when we invite doctor again for nutrition, then maybe that time you can ask. So thanks a lot, Medha. It was been fantastic, amazing. बहुत अच्छा था आपका ट्रेनिंग. और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने भी आपको ये ट्रेनिंग में बुलाया है, आप वो आपका सर्विस सेंटर है, तो आप उसको रिस्पेक्ट दो और उनको जाके मीटिंग में अटेंड करो, तो उनका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग है ना एथिकल काम करते हैं और हम लोग को अनएथिकल काम नहीं करना है. So first I would like to thank, by the way, there were more than 275 people. Very good. This meeting. So it was fantastic, guys. Thank you, Medha. Thank you. Thanks all of you. Thank you सब लोग के लिए कि हमारे सेशन में आए. Thanks to Rajiv, Ashutosh, Santosh, and myself, and of course, how can we forget Medha? Thanks, Dr. Medha, and God bless you, and have a fantastic day. Have a thank you, Simon sir, for inviting me. Anytime. Thank you. Bye, guys. Take care. Have fun.